seen various types of budget till now, just like a production budget, production cost budget, sales budget, raw material requirement budget. Okay, now we are moving on the new types of budget, selling expense budget. Okay, so we have to deal with the example number 11. This is amount of example number 11. Data regarding selling and expenses of a particular company. Let's see the example. In example number 11, they have provided the data of selling and expenses one by one. Each expenses is given and amount is given. Now, what we have to do? See, during the year 2009, budget period was 2009. The following changes are to be considered. That means what? If you have a past data and they are asking us to make new budget, selling and expenses, new budget for a year 2009, a year आपको मान लो कि आपके पास रिसेंट डेटा है तो आपका ईयर चेंज हो जाएगा, 2020-21 हो जाएगा। अगर आपके पास ईयर दूसरे साल का डेटा है, प्रीवियस ईयर का डेटा है, तो आपका ईयर क्या होगा, ईयर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बुक में मेंशन किया है ओल्ड ईयर, पर उस पर फोकस नहीं करना है कि टाइम कौन सा है। आपको क्या देखना है कि आपको कौन से साल का बजट पूछा है और कौन से साल का डेटा दिया है। क्लियर? दे आर सेइंग दैट फर्स्ट we have to consider the first point, sales commissions to be increased by 5%. हमें क्या करना है, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिए हैं। ए हमारा है सेलिंग एंड एक्सपेंसेस बजट, ए है हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन की जो अमाउंट है उसमें हमें क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करेंगे कैसे? जो चेंज उन्होंने बोले हैं वही चेंज हमें करने हैं। पहला क्या बोला उन्होंने कि सेल कमीशन कितना था वो देखते हैं। तो कमीशन ऑन सेल इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5%। सो यहाँ पर जो भी अमाउंट है वहां पर हमें क्या करना होगा, 5% इंक्रीज करना होगा हमारे एक्सपेंसेस में। तो नेक्स्ट ईयर का हमको बजट मिलेगा। कमीशन ऑन सेल प्रीवियस ईयर का कितना है, 4000, उसमें हम 5% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000 इंटू 5%, दैट मीन्स यू विल गेट आंसर ऑफ 200 रुपीज। ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4200। सेम वे फॉर 3000 इंटू 5%, so my answer will be 150. Add in this 3150 rupees. For next same amount, so my answer will be same. Clear? The first point is clear. What we have done, we have increased 5% commission on sell, and that's a sell budget, selling expense budget. Rent will be increased by 10%. See the amount of rent and rates, 1000, 1200 and 1000. What we have to do, we have to increase by 10%. Okay, so in this amount we have to increase 10%. Okay, calculate 10%, 1000 into 10%, your answer will be 100 rupees. Same way you have to do for 1200 into 10% is equal to 120. Add on this, your answer will be 1100, 1320. What I have done, I have added this increase in this particular original amount. After that, same amount will be repeated because 1000 and 1000 is same here. Okay. Next point, in Ahmedabad and Surat, advertisement expense will increase by 20%. Here, be careful because they are showing only for Ahmedabad and Surat. They are not saying for every cities. So, see in advertisement, in Ahmedabad, so I have to change this amount, and second one Surat. सूरत के लिए आपको चेंज करना है 20%। तो 20% से क्या होता है,
आपका एक्सपेंस इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज करेंगे हम 20%, 1500 into 20%, my answer will be 300. What I will do, there is an increase, so I have to add on and I will get answer 1800. Clear? Next point, same amount will be for Vadodara because there is no change. They are not saying to change in a Vadodara. They are saying only change will be occur in Ahmedabad and Surat. So 2000 will be same. In Surat there will be also 20% increase. So same amount will be added 300 and my answer is 1800. Clear? Next point, salesman's total salary will increase by 2400. Now, in this type of transaction, they are saying total increase, okay, and this increase will be bifurcated as per their proportion. So, total increase in salesman's salary is rupees 2400. यहाँ पर आपका टोटल इंक्रीज बोला है, आपको ऐसा नहीं बोला है कि कौन सी सिटी के लिए कितना है, वो प्रपोर्शन दिया है। आपको पहले बोला है कि इतनी अमाउंट है, वो इतनी अमाउंट टोटल सैलरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो सैलरीज है वो एज पर द सिटीज हमको क्या करनी होगी, बाइफरगेट करनी होगी एज पर गिवन द प्रपोर्शन। यहाँ पर प्रपोर्शन क्या दिया है, आपको प्रपोर्शन दिया है अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत का प्रपोर्शन है 2:1:3. ओके, सो नाउ आई विल डिवाइड, आई विल बाइफरगेट 2400 into 2/6, 2004 into 1/6 and 2400 into 3/6. क्लियर? ओके, आप ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप 2400 को डिवाइड कर दो 6 से, आपको अमाउंट मिलेगी 400 और उसको 1/1 इंटू करके आप आंसर ला सकते हो। अब आपका आंसर क्या होगा, आपको क्या करना होगा, दिस टाइप ऑफ प्रपोर्शनेट अमाउंट यू हैव टू ऐड इन दिस योर ओरिजिनल अमाउंट। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, 800 को ऐड करना होगा। मैम 800 कैसे आए, यहाँ से आपका इस कैलकुलेशन का आंसर आपका क्या होगा, 800। क्लियर? यहाँ पर आपका आंसर होगा 400 और यहाँ पर आपका आंसर होगा 1200। क्लियर? ट्रायो अमाउंट विल बी एडेड पर्टिकुलर इन सेल्समैन सैलरी। सो आपका आंसर होगा 3000 एंड repeatedly 3000 for Surat. Clear? Okay, what I have done, I have added the proportionate increment in a particular said countries. Cities. Ahmedabad में 800, वडोदरा में 400 एंड सूरत में 1200 को मैंने क्या कर दिया है, सिर्फ ऐड कर दिया है। अब प्रिपेयर selling expense budget for a year 2009. This budget is for a 2009. Clear? अब बाकी जो अमाउंट रही है वो हमको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज जो दी है वो ही लिखनी होगी। सेल्समैन सैलरी इज डन, रेंट एंड रेट्स आर डन, एडवर्टाइजमेंट इज डन। नाउ वेयर हाउस एक्सपेंसेस, इट विल बी सेम एज इट इज 4,500 and 3,500. Okay, next point, selling and expenses are given 3,000, 3,500 and 2,500. Now listen me carefully. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कॉलम एक और एक्स्ट्रा दी है टोटल, पर यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे बजट में रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर वर्टिकली हमको लिखना होगा। क्या लिखना होगा, टोटल लिखना होगा। पहले क्या करेंगे, हम सारे एक्सपेंस का टोटल करेंगे। टोटल होगा हमारा 17,100
17,470, 16,100. Okay, this is my total of entire budget and this is my answer. Okay, selling and expenses budget जब आपको एग्जाम्पल में पूछते हैं that means you are so lucky because it's a very easy to prepare selling and expense budget. आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला होगा, आपको सिर्फ क्या होगा, आपको अमाउंट में चेंज करना होगा और सिर्फ अमाउंट लिखनी होगी. यहाँ पर सारे पोर्शन में इंक्रीज है बट इट्स नॉट फिक्स दैट दे विल आस्क ओनली इन इंक्रीज, दे कैन आस्क डिक्रीज ऑल्सो. ओके, सो बी केयरफुल, प्लस माइनस करके ही आपको आंसर लाना है और आपको ऐसे बाइफरकेट करने का एक ट्रांजेक्शन दिया होगा तो आपका सेलिंग एंड एक्सपेंसेस बजट बन जाएगा. ओके, सो नाउ एग्जाम्पल नंबर 11 इज ओवर. नाउ वी आर मूविंग ऑन एग्जाम्पल नंबर 18. ऐसे सारे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप का एग्जाम्पल हम करेंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 18.